Hello friends, I welcome you all in my lecture of the subject of Fundamentals of Financial Management. So as you can see, you can observe over here, my name is Dr. Ishan B. Khatri and I have been working as an in-charge principal in Srimati Sarlaben Chaturbai Patel Institute of Commerce, Dehgaon. This college is affiliated to Gujarat University Ahmedabad and it is managed by one of the oldest trusts of Gujarat, Dehgaon Taluka Education Society. Now, basically, my focus for this particular subject is keeping in mind the students of BCom Gujarat University. So my focus will be the syllabus of Gujarat University so far this subject is concerned. But before that, we need to understand which are the subjects offered by Gujarat University so far the branch of management is concerned. So सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सेमिस्टर 1 में बीकॉम के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी में. देन देयर इज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन सेमिस्टर 2. इन सेमिस्टर 3 there is a subject called IFS, Indian Financial System. According to me, this subject is not of financial management. You can say it is a subject of finance, but it will be wrong to have this particular word management after finance. So in semester 3, there is no subject of management. In semester 4, of course, we are going to deal with production management. In semester 5, we have been studying marketing management in practice. In semester 6, we need to learn fundamentals of financial management. So this subject is in the syllabus of Gujarat University in the semester 6. Now, before we start with the subject called financial management, we need to understand what is the meaning of finance. It plays very important role so far the finance is concerned, not only for any business but also for various institutes, various organizations. So what is finance? Activities associated with banking, leverage or debt, credit capital markets, money and investments. ये सारी जो activity है that will be included in finance. Many of the basic concepts in finance originates from micro and macroeconomic theories. So there are various subjects of commerce which are interrelated and you can say that this particular subject of financial management or this particular topic of finance comes from you can say micro and macroeconomic theories. So you can say financial management is somewhere interrelated with accounting also, and financial management is somewhere related with economic theories also. Three main subcategories of finance. नंबर 1 इज पर्सनल फाइनेंस, जो इंडिविजुअल के हर रोज के एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी इनकम होती है, उससे रिलेटेड स्टडीज. देन देयर इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. with this particular topic of corporate finance we are going to study in detail. And third one is public or you can say government finance. Central government has been making expenses, state governments also have been making expenses for the welfare of the people. Now the question, why finance is important? Now what is the reason that we need to understand the concept of finance? Money occupies key position. You can see over here, I must underline this word, key position. Now it plays very important role so far any organization is concerned. Nothing is possible without money. Concerned with top management of the finance, the decisions regarding finance, the big expenditures, policies regarding salaries of people in the company. So decisions about expenditure as well as of income, ultimately you can say decisions about finance are taken by top management. Yes, this is very important. लाइफ ब्लड, जैसे हमारे शरीर में ब्लड का इम्पोर्टेंट है वैसे ही बिजनेस में भी फिनेंस का इम्पोर्टेंस है. अगर हमारे शरीर में से ब्लड नहीं, मतलब पूरा अगर हमारे शरीर में से ब्लड पूरा
निकल जाता है तो विल बी नो मोर। इन द सेम वे अगर बिजनेस में से भी फिनेंस अगर नहीं है, बिजनेस इन द सेम वे अगर बिजनेस में भी फिनेंस नहीं है, मनी नहीं है, तो वो बिजनेस ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। ठीक है। नाउ even for a day-to-day expenses of raw material, labor, operations and administrative activities, there are various activities going on, there are many types of operations, business operations going on. For those operations, for day-to-day activities, money is important. lubricating element जैसे ऑयलिंग जो है किसी भी मशीन को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए तैयार करती है, राइट। इन द सेम वे फाइनेंस भी जो बिजनेस की जो मशीनरी है, बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है। नाउ फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, as we have already studied the introduction part of finance and financial management, there are two words. Number one word is finance. There are two words. One word is finance and second word is management. So applying the tools of management to financial problems becomes financial management. So financial management is nothing but applying the tools of management for financial problems. But definitions हर किसी की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऑथर्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है, बट अगर आप उसका निष्कर्ष देखें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू होगलैंड, now Hoagland is one of the famous authors so far the financial management is concerned. According to Hoagland, financial management is mainly concerned with such matters as how a business corporation raises its finance and how it makes use of it. जो मेन चीज यहाँ पर होगलैंड जो कह रहे हैं वो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ हाउ ए बिजनेस कॉर्पोरेशन विल रेज द फाइनेंस एंड हाउ इट विल मेक यूज ऑफ इट, कैसे पैसा लाना है और कैसे उसका उपयोग करना है। अब बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी बुक में, किताबों में दी गई है, बट सारी डेफिनेशंस को अगर आप समझते हैं तो उसमें से समरी निकल के ये तीन ही पॉइंट्स आते हैं। नंबर वन इज एक्वायरिंग फंड्स, नंबर टू इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड नंबर थ्री इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कहाँ से आप फंड्स लाते हैं, कितनी कॉस्ट होती है, क्या आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी फंड्स रेज करने की कॉस्ट को। सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल से आप पैसा लाएंगे, डिबेंचर इश्यू करके पैसा लाएंगे कंपनी में, लोन लेके बैंक से पैसा लाएंगे, तो बहुत सारी जगहों से आप पैसा लाते हो, तो उसकी कॉस्ट भी आपको मद्देनजर रखनी होगी। यू विल हैव टू टेक इन टू इम्पोर्टेंस, you will have to understand the importance of minimizing the cost while acquiring funds. नंबर टू इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आप फिक्स एसेट्स में कितने पैसे रखेंगे, आप करंट एसेट्स के लिए, नेट करंट एसेट्स जिसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए आप कितना पैसा रखेंगे। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मुनाफा अगर आता है, पैसा आपके पास आता है मुनाफे के तौर पर, इफ योर कंपनी हैज बीन अर्निंग गुड प्रॉफिट, then how much amount of profit you are going to retain with the company and how much amount you are going to distribute as dividend. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फ्यू ऑथर्स, जैसे कि ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप ऑथर्स के कम से कम नाम जाने कि किन्होंने फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। यहाँ पर कुछ ऑथर्स के नाम मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स की किताबें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। सो देयर इज नो नीड टू गो इन टू द मार्केट, वैसे भी अभी पॉसिबल नहीं है लॉकडाउन के अंदर कि आप मार्केट में जाए बुक लें, तो यू विल हैव टू सेटिस्फाई विथ ऑनलाइन लर्निंग एंड ई बुक्स। सो यहाँ पर कुछ इंडियन नाम भी है ऑथर में, प्रसन्न चंद्र आप देख सकते हैं, आई.एम. पांडे जिनकी बुक बहुत मतलब यूज होती है फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। देन देयर इज अनदर इंडियन, यू कैन से अनदर ऑथर M.Y. खान एंड जैन P.K. सो ये बुक्स बहुत ज़्यादा यूज होती है। सो if you are interested in financial management, you can search on Google and you will find some good e-books in free and you can learn from those books. Importance of financial management.
नाउ कुछ बातें तो पहले ही हो गई है, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन जैसा लगेगा। एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप मैनेजमेंट की किताब लेके बीकॉम के अंदर देखें तो 4-5 चीज़ें हर चैप्टर में कॉमन निकलेगी, सो फार द क्वेश्चंस आर कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर ले लो आप, उसमें सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद होती है छोटी सी डेफिनेशंस, उसके बाद होती है छोटी सी डेफिनेशन। अच्छा, ऑथर्स ने जो जो डेफिनेशंस लिखी है वो भी आपको 3-4 डेफिनेशंस दिखाई जाती है बुक के अंदर, समझाई जाती है। उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, प्रोसेस या स्टेप्स। सो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस ही आपको मोटे मोटे निकलते हैं। अब ऑफ कोर्स एक चीज भी यहाँ पर मैं भूल रहा हूँ, ऑफ कोर्स एक और चीज भी है, दैट इज डिफरेंस। सो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस आप कर लेते हो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इनफ। नाउ विल फोकस ऑन अवर टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। So before considering the importance of financial management, a financial manager will have to think about following things: success of promotion। अच्छा, अगर आपके बिजनेस को आपको प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, सफलता लेनी है, बिजनेस में सफलता पानी है, अगर आपको सफलता पानी है अपने बिजनेस में, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीरियसली लेना होगा। अगर आपने ज़्यादा कैपिटल इकट्ठी कर दी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। देयर इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, विल स्टडी इन डिटेल इन द अपकमिंग लेक्चर्स। नाउ स्मूथ रनिंग ऑफ एंटरप्राइज, ये बात आगे भी हो गई हमारी कि जैसे एक लुब्रिकेट वर्क करता है मशीनरी में, एक लुब्रिकेट वर्क करता है मशीनरी में उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिल्कुल उसी तरीके से फिनेंस भी काम करता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। सोचो आप, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, इफ यू डोंट हैव मनी, how you will run your business, how you will pay to your workers, how will you pay to your laborers, employees, how will you purchase material for production? So there are various issues that you will have to face without money. So for the smooth running of enterprise, it is advisable to study the subject of financial management. Expansion, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, राइट, एक्सपांशन, अगर आप अपना बिजनेस जो है उसे आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, ज़्यादा लोगों तक आपकी सर्विसेज पहुंचाना चाहते हो, तो भी आपको मनी की ज़रूरत, फिनेंस की ज़रूरत, तो भी आपको फिनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। प्लानिंग फॉर लिक्विडिटी, नाउ ये शब्द जो है वो बहुत बार आएगा, लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी माने आपके पास ऐसी कितनी एसेट्स है जिसका आप बहुत जल्दी ही कैश के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कितनी एसेट्स है जिसे आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपकी एबिलिटी है एसेट्स की, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। सो प्लानिंग जो लिक्विडिटी के लिए करते हैं बिजनेसमैन, वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो प्रोफेसर सलोमन सेज दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट of overall management rather than merely a staff activity concerned with fund raising operations। तो बहुत ही बढ़िया बात कही इन्होंने कि भाई फाइनेंस मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो एक डिपार्टमेंट होता है और उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसका स्कोप है, बहुत लिमिटेड है उस एरिया के अंदर। मगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करें तो ऐसा नहीं है, उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। सो फार अदर सब्जेक्ट्स, अगर कंपैरिजन की जाए अदर सब्जेक्ट्स के साथ, तो उसका कार्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इट इज़ नॉट ए मियरली स्टाफ एक्टिविटी, अंडरस्टैंड, कि छोटी सी ऑफिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 3-4 लोग उसका काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए क्लैरिकल वर्क। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होगी, क्योंकि फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिपार्टमेंट,
फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबके लिए सोचना पड़ता है क्योंकि सब डिपार्टमेंट में पैसों की ज़रूरत है। तो उसका जो डिसीजन है वो डिपेंडेंट है फिनेंस डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो फिनेंशियल मैनेजर और फिनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर।